Did you understand the motive behind what we are going to do? Yes, ma'am. Everybody. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Great. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. So now, as I said that you will just understand the slide कि we are not doing, यहाँ पे code लिखा हुआ है कि if 1 is yes and 2 is less than 2, then bird or cat and dog. These are the set of rules which are provided. And then you are distinguishing. So this is not how our machine learning works. We don't do explicitly coding over here. How our machine learning works? Like this. By understanding the patterns. कुछ patterns को जैसे एक बच्चा समझता होगा, एक छोटा बच्चा, before getting to know how does a cat look or how does a dog look, एक छोटे बच्चे के अंदर कुछ तो आता होगा दिमाग में कि वो किस तरीके से उसके पैटर्न को पकड़ करके कैट, डॉग, फिश, ये सारे चीजों को डिस्टिंग्विश करे. Similarly, our machine learning works by extracting some of the patterns from the data which we have provided and then able to distinguish or classify the things. Okay. So now I'll just tell you what are some of the machine learning techniques and what we will be going to focus on and what are some of the examples of machine learning. ठीक है. The very main जो techniques हैं, these are regression, classification and clustering. ठीक है. And बाकी I'll be providing the examples. ठीक है. So first comes regression. रिग्रेशन में क्या होता है कि अगर कोई चीज आपको प्रिडिक्ट करनी है, लाइक लेट्स से हु इज हियर इन आवर मीटिंग, लेट्स से आई एम हैविंग अपराजिता. ओके, सो अपराजिता के पास शी इज हैविंग फ्लैट्स. ठीक है. अपराजिता बहुत ज्यादा पैसे वाली है एंड शी इज हैविंग लॉट ऑफ फ्लैट्स इन हर शी इज ओनर ऑफ मल्टीपल फ्लैट्स इन कोलकाता. ओके, सो व्हाट if I say that Aprajita, I want to buy 1 BHK flat from you, so what is the cost of that? So Aprajita will say that I'll say what is the approx cost of 1 BHK flat. Then she will say that yes, it can cost you around 30 lakh. Now again I'll ask Aprajita कि Aprajita, I want to buy 2 BHK flat. तो उसका क्या cost होगा? Then Aprajita will say that 2 BHK will cost you around 40 lakhs Ramnik. ठीक है? I'll be satisfied. Again I'll ask Aprajita, what about 3 BHK flats? Then she will say that 3 BHK will cost you around 60 lakhs. ठीक है. तो how is Aprajita telling me कि 1 BHK is for 20 lakhs, 2 BHK is for 40 and 3 BHK is for 60? How is she telling that? Is someone on unmute? Hello, is my voice audible? Yes, ma'am. Okay, so ये चीज अपराजिता के पास कैसे आ रही है कि अपराजिता की ये anyone can you answer कि अपराजिता ये चीज कैसे बोल रही है? 20 lakh, 40 lakh, 60 lakh. By guessing How of is she Just telling the that? data of all the flats and buildings, whatever you're asking her. Exactly. What is your name? Ma'am, this is Ramjit Sarkar. Very good. So this is what Aprajita is doing because Aprajita के पास बहुत सारे flats हैं. So she has sold several flats. तो उसको पता है by the previous data, by the history of the data कि flats के ये prices तो cost you around this. And ये जो अपराजिता
जो अपने दिमाग में जो यूज कर रही है, दिस इज नोन एज रिग्रेशन. रिग्रेशन क्या होता है कि अगर हिस्टोरिकल डेटा से वी आर प्रिडिक्टिंग समथिंग न्यू, ठीक है, जैसे कि अभी अपराजिता ने करा, हिस्टोरिकल जो पास डेटा उसके पास है हाउस प्राइस के, उस प्राइजेस से उस एक न्यू मुझे बताया कि 1 BHK का अप्रॉक्स इतना होगा, 2 BHK का इतना, 3 BHK का इतना. दिस इज व्हाट रिग्रेशन डज. हम अपने मशीन में जब भी रिग्रेशन मॉडल यूज करेंगे, सो इसमें ये एक चीज कि we will be predicting some condition. अब आता है क्लासिफिकेशन. एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है कि वी क्लासिफाई थिंग्स. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कैट, अ डॉग, a cancer cell is benign or malignant. So we are putting these labels into different categories, right? तो ये जो categorize कर रहे हैं हम into different domains, into different categories, this is known as classification. ठीक है, तो हम जब मशीन को ऐसी चीज सिखाते हैं कि हमारा जो है इस चीजों के बारे में, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक डेटा है, उसकी क्लास क्या होगी. We are having these parameters, so what will be the class of this particular data. तो जब हम ऐसे एक इसको कैटेगरी में बिलोंग करवाते हैं, कैटेगरी क्या है यहाँ पे, बिनाइन या तो मैलिग्नेंट. तो जब हम इस तरीके से अपने डेटा को कैटेगराइज करते हैं, सो दिस इज क्लासिफिकेशन. ठीक है. सिमिलरली वी हैव क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग क्या होता है, इसमें हम क्लस्टर्स बनाते हैं. लेट्स से, अब अगेन I'll give you example to understand, क्योंकि I believe in explaining things with examples. तो ये आपको ज्यादा अच्छे से याद भी रहेगी. कभी आपसे इन फ्यूचर किसी ने अगर कुछ पूछा भी, so you will be एग्जाम्पल रिकॉल करके आपको वो चीज हमेशा याद रहेगी. ठीक है. तो क्लस्टरिंग में क्या होता है कि आप एक एग्जाम्पल लो कि मेरे पास आई एम हैविंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, and I'm having orange and apples. ठीक है, but I never had these fruits before. I don't know what orange is and I don't know what an apple is. I completely am unaware of these things. I can only see a basket and fruits. ठीक है. Now someone came and gave me 2 more baskets and said that you please segregate these fruits. ठीक है, फ्रूट्स को अलग अलग कर दो. सो व्हाट आई विल डू इन दैट केस, मुझे नहीं पता ऑरेंज कौन सा है या एप्पल कौन सा है, उस फ्रूट्स में कुछ लिखा हुआ नहीं है या कहीं स्टिकर नहीं है कि दिस इज ऑरेंज और दिस इज एप्पल. व्हाट विल आई डू, मैं पैटर्न्स देखूंगी. आई विल सी कि जो जो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स मुझे दिख रहे हैं राउंड शेप में, आई विल पिक इट अप एंड पुट इट इन वन बास्केट. एंड जो बाकी रेड वाले जो मुझे दिख रहे हैं फ्रूट्स जिसका एक शेप है, वो उसको मैं क्या करूंगी, उठाकर आई विल पुट इट इन द अदर बास्केट. ठीक है. सो दिस इज हाउ what am I doing? I am clustering. I am making clusters of 2 different classes. ठीक है. So this is what clustering is. कि I don't know, I'm unaware of the fact that the fruit, how the fruit is or what the fruit is. I'm just taking some patterns and I'm putting the similar items in one category. Okay. So are you with me? Are you able to understand what these 3 things are? Regression, classification and Yes, clustering. ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shall I ask someone? We Ma'am, have can you please repeat? Arindam. Arindam, can you? I'm sorry. Ma'am, can you please repeat once again these 3 parts? Okay, so regression is something in which we are having some historical data and उस historical data से we are predicting our new data. ठीक है, ये prediction होता है continuous values में. Classification
सेम होता है जब हम डिफरेंट कैटेगरीज में किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं. लाइक ये डॉग है, ये कैट है, वी आर क्लासिफाइंग इन डिफरेंट टू डिफरेंट कैटेगरीज, डॉग्स एंड कैट्स. ठीक है. नेक्स्ट कम्स क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो भी हमारे पास किसी भी चीज की डिटेल्स नहीं है, जो भी हमारे पास डेटा है, हम उस डेटा को, सिमिलर डेटा को एक जगह रखते हैं. ठीक है. और ऐसी सिमिलर चीजों के क्लस्टर्स बनाते हैं. सो दिस इज व्हाट क्लस्टरिंग इज. इज इट फाइन नाउ? Yes, ma'am. Everyone, can you please just raise your hand and tell me that yes, I'm with you and I'm understanding everything? Very nice. Okay, so we'll move ahead. Thank you for your consent. And अब कुछ कुछ एग्जाम्पल्स I'll give. जैसे कि कुछ एसोसिएशंस, ये भी होता है हमारी मशीन लर्निंग में कि यू कैन सी, जब आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो, मिंत्रा यूज करते हो, तो व्हेन यू बाय समथिंग एंड पुट समथिंग इन योर कार्ट, तो नीचे ही एक ऑप्शन आता है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर. ठीक है. ये ऑप्शन कहाँ से आता है? ये आपका जो फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, इन सबके अंदर एक मशीन लर्निंग का मॉडल है. वो आपका डेटा एनालाइज कर रहा है, वो आपका डेटा देख रहा है कि आप किस की यूजर्स, जितने सारे यूजर्स हैं हमारे पास, उन यूजर्स ने हर एक टॉप के साथ एक जीन्स परचेज करी है और हर एक शर्ट के साथ एक जीन्स परचेज करी है. ठीक है. तो जब आपने भी उस शर्ट को अपने कार्ट में डाला, तो वो आपको एक फ्रीक्वेंट अकरिंग आइटम, एक जीन्स का डेटा प्रोवाइड करके नीचे प्रॉम्प्ट में शो कर रहा है. ठीक है. तो दिस इज मशीन लर्निंग. जो भी वर्क करता है, इट्स ऑल प्लेइंग गेम्स विद द डेटा. एक बार आप डेटा को समझना सीख गए, डेटा के साथ छेड़खानी करना सीख गए, you will become pro in this. Ma'am, I have a question. Anomaly. Sure. Ma'am, the question is like, as you said about Myntra itself, so I'm going to talk about any of the shopping like stores, like online shopping stores. What happens is like we have got a particular, like for any brand or for any product, they've got a particular consistency. Like it has got this many products for this particular item and this many like, you know, the number of items for one particular product, right? So whenever we purchase something, to वहाँ पे आता है show करके only 1 left or only 3 left or something like that. Exactly. So once we buy that or someone gets that, so that gets like demolished, or that gets like, you know, वो घट जाता है उसका like consistency, right? There is Right. that product no more available. So what happens to that data? What happens to that data? हाँ, मतलब कि जैसे कि हर एक particular product के लिए data रहता है, like as you said about the, like you give an example of the orange thing and the apple thing, right? तो वैसे ही हर एक चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा रहेगा. तो फिर एक बार जब हमने वो डेटा, तो वो डेटा के हिसाब से वो कैलकुलेट भी होता रहेगा, लाइक फॉर लाइक द सेम प्रोडक्ट, लेकिन और भी बहुत सारे, तो सबके लिए डेटा रहेगा. तो वो डेटा भी क्या डिक्रीज होता रहेगा वैसे, लाइक विद परचेजेस एंड स्टफ. Yes, but what you are saying is something different, because अगर कोई डेटा अगर घट रहा है, अगर किसी भी ऑनलाइन स्टोर में अगर कोई प्रोडक्ट कम हो रहा है, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम मशीन लर्निंग. दिस इज समथिंग जो कि एक जो प्रोवाइडर है उसको एक पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा कम है, सो वी हैव टू इंक्रीज आवर, यू नो, जो भी सेल है उसको इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रोडक्ट. But this is not related to machine learning. Machine learning is something which is very advanced, जहाँ पे हमारे this is, ये जो है आपके मशीन में किसी भी चीज की लर्निंग स्किल्स या उस तरीके की स्किल्स आई नहीं. आप एक एग्जांपल ले लो यूट्यूब का, या टेक एन एग्जांपल ऑफ नेटफ्लिक्स. आज के जमाने में सब नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं. सो व्हेनेवर यू आर वाचिंग अ मूवी, यू गेट रिकमेंडेशन रिलेटेड टू दैट. यूट्यूब में भी अगर यू आर वॉचिंग टॉम एंड जेरी, आप जब यूट्यूब खोलोगे ही आपको रिकमेंडेशन आता है टॉम एंड जेरी का. यू डोंट गेट एनी रिकमेंडेशन फॉर अ सॉन्ग.
राइट? Hmm. तो ये सारी जो चीजें हैं, दिस कम्स अंडर मशीन लर्निंग, दिस रिकमेंडेशन सिस्टम, दिस इज सीइंग योर डेटा का डेटा वो देख रहा है कि यू आर वाचिंग टॉम एंड जेरी, सो आई विल रेकमेंड कि आप टॉम एंड जेरी देखो, राइट? सो दिस कम्स अंडर मशीन लर्निंग. Okay. Thank you. Okay. Excuse me, Yes. So. ma'am. Mhm. Yes, actually, I have a doubt. You said about the 4 techniques of machine learning. So I find it's not a kind, rather than it's pretty like interrelated. Like for example, if you're going to see the first one, like where the previous data, according to that previous data, it predicts something. Now those datas are definitely need to be classified. So they are been classified into different classes, and then the third one, that clustering, what we do, so the clustering depend upon classes, or like if you talk about association, that is also depend upon the previous data. On that we get a feedback ki, okay, these are the products which are like such kind of things. So I find it like it's pretty related rather than it's a type. Exactly. But once you go in a very depth of different things, then you will come to know that yes, these are completely different from each other. Because in clustering, you don't provide the labels. You don't, क्योंकि डेटा वाली चीजें तो सेम चल रही हैं कि डेटा से ही सारी लर्निंग होगी, वेदर इट्स क्लस्टरिंग, वेदर इट्स क्लासिफिकेशन, वेदर इट्स रिग्रेशन, काम तो सारी चीजें डेटा आ रही हैं क्योंकि आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो. बट बात आती है ना कि आप डेटा मशीन को दे देते हो एंड यू से दैट मशीन यू लर्न दिस डेटा. उसके बाद की जब बात आती है कि विच मॉडल यू आर गोइंग टू अप्लाई, whether you'll apply regression, classification and clustering, that's where you have to find the difference among these categories. ठीक है? एंड ये बहुत इजी है, बट इसके लिए यू हैव टू लाइक आगे भी चीजें जो मैं आगे लूंगी सेशंस में, यू हैव टू नो दीज थिंग्स टू गेट एन इनसाइट कि मैं कैसे इस चीजों को डिस्टिंग्विश करूंगी. ठीक है? सो आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड कि हमारे पाइथन का जो यूज है मशीन लर्निंग में वो कहाँ पे आता है. ठीक है? सो यू कैन जस्ट see or just note down the like libraries, Python libraries which we will be using in our project. Okay, first is the NumPy. ये जो NumPy these, इसमें क्या होता है ना, मशीन लर्निंग में you don't have to कोड बहुत ज्यादा, इसमें सारी लाइब्रेरीज आपकी इंपोर्टेड, आपको बस लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है पाइथन की एंड यू हैव टू वर्क. इसमें जो सबसे ज्यादा काम आएगा इट्स योर ब्रेन. ठीक है? यहाँ पे आपको सिर्फ अपना दिमाग चलाना है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं. तो वी हैव 2 लाइब्रेरीज जो आपको NumPy और SciPy दिख रही है. दीज आर दी साइंटिफिक कैलकुलेशन लाइब्रेरीज. यहाँ पे आप डेटा को, अगर कुछ डेटा में से कुछ आपको मीन निकालना है, कुछ मीडियन निकालना है, और यू हैव टू अप्लाई एनी scientific calculation to the data, then you use these 2 libraries, NumPy and SciPy. Okay. Next comes Matplotlib. एक Matplotlib होता है, one is Seaborn which is not mentioned over here. So Matplotlib और Seaborn जो लाइब्रेरी होती है, इससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपने डेटा को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है? एक सुंदर तरीके से. लेट्स से अभी कोविड का टाइम चल रहा था. ठीक है? तो आप क्या करते थे, आप ये नहीं जा करके देखते थे कि हाउ मच आज के केसेस कितने हैं या व्हाट इज द कोविड केसेस फॉर टुडे. व्हाट यू, आप जैसे अगर गूगल पे डालो बिना कि कोविड केसेस टुडे, तो सबसे पहले द गूगल शेयर्स यू द ग्राफ ऑफ द कोविड केस. ठीक है? तो उस ग्राफ से क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो केस था वो यहाँ से आया और यहाँ से वो घट रहा है. राइट? सो जो एक आप पूरा डेटा अगर बैठ करके पढ़ो 4-6 महीने का, या आप सिर्फ एक सिंपल सी ग्राफ देख लो, वेदर इन शेयर मार्केट देख लो. आजकल के आप सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, सो आप सबको ज्यादा इंटरेस्ट आता होगा बिटकॉइंस में, शेयर मार्केट में, तो आप लोग भी ग्राफ स्टडी करते होगे, मोस्ट ऑफ यू. तो जितना आप डेटा के पढ़ोगे, द ग्राफिकल फॉर्म इज मोर
easy to analyze, right? So the same happens in Matplotlib and Seaborn. Matplotlib and Seaborn में हम क्या कर सकते हैं? Whatever data we provide, we can just make our data into a graphical representation, which will be more easier to understand. ठीक है? The most important is the pandas. ठीक है? Don't call it pandas. This is pandas. ठीक है? तो pandas में क्या होता है कि ये जो हमारी लाइब्रेरी होती है, ये आपका जो भी डेटा है उसको आपके प्रोग्राम तक लेकर के जाता है, कोड तक. ठीक है? Like you have data in Excel sheet, you have data in let's say text file or word file, जो जहाँ भी आपके पास डेटा प्रेजेंट है, आप उस डेटा को अपने जब कोड में लाकर कुछ एनालाइज करोगे, सो यू नीड टू ब्रिंग दैट डेटा इनटू योर कोड, राइट? तो उसके लिए हमारे पास पैंडाज में उस डेटा को रीड और राइट करने की जो भी वो होती है एक्सेस, वी गेट इट विद द हेल्प ऑफ पैंडाज लाइब्रेरी. ठीक है? एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इज द scikit-learn. ये scikit-learn जो लाइब्रेरी है, आपने डेटा को ले लिया को, अब आप उस डेटा से इनसाइट निकालोगे, लेकिन फिर आप जब मॉडल को ट्रेन करोगे तो आप किस चीज पे मॉडल को ट्रेन करोगे? रिग्रेशन पे, क्लासिफिकेशन पे, क्लस्टरिंग पे? आप क्या चीज यूज करोगे अपने मॉडल से इनसाइट निकालने के लिए? तो scikit-learn क्या होता है? ये बस एक लाइन का आपको कोड देगा टू import the model. ठीक है? Your model can be regression model, classification model और clustering model. आपको कुछ भी यहाँ पे बहुत सारा कोड नहीं करना. You just have to import that model and आपका मशीन समझ जाएगा कि you are using regression, classification और clustering. ठीक है? सबको समझ आ रहा है? Can you please explain the last point? Yes, ma'am. Ma'am, can you explain this once again? The scikit-learn. Scikit-learn is a library in which ये कल जब हम scikit-learn पे जब we will be coding, ये आपको ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा. ठीक है? For now, for today we will be covering pandas. कि मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड पे 3-4 स्लाइड्स के बाद आपको बताऊंगी कि pandas लाइब्रेरी क्या है और वो कैसे यूज होगी. ठीक है? तो मशीन लर्निंग का प्रोसेस है कि हमारा मशीन किस तरीके से सीखेगा हमारा मॉडल. अभी आप एग्जांपल ले लो कैंसर सेल डिटेक्शन का. ठीक है? जो भी चीजें हैं बिल्कुल अब अपने दिमाग को खाली करके यहाँ पे समझने की कोशिश करो. मैं आपको डेटा शो करती हूँ. ठीक है? अभी we were talking about this, right? So we have categories. यहाँ पे benign और malignant की जगह हमारे पास 2 और 4 लिखा हुआ है. ठीक है? 2 is for benign and 4 is for malignant. Okay? तो ये जो हमारा, I'll just write it over here कि 2 is for benign. जहाँ पे 2 है, the cell is benign and the 4 is for malignant. Okay? तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स के बारे में हर एक सेल की कैटेगरीज और उसके पैरामीटर्स के बारे में कि सेल की आईडी ये है, this is the clump size, this is the uniformity of cell size, shape and the other parameters. Okay? And ये जो इतने सारे पैरामीटर्स के बाद ये जो हमारा सेल है, this is 2, this is benign. This data we have provided to the machine to learn. And अगर आप देखो तो we have around 700 डेटा. ठीक है? जो कि हम अपने मशीन को प्रोवाइड करेंगे. एंड वी विल आस्क आवर मशीन कि एक डेटा जब मैं अपने मशीन को प्रोवाइड करूं तो द मशीन मस्ट बी एबल टू गेट कि जो अननोन हमारा सेल है, इट इज वेदर इट इज बेनाइन और इट इज मैलिग्नेंट. ठीक है? तो हम ये चीज करेंगे. अब तो पूरे मशीन लर्निंग के प्रोसेस में just give me 1 second.
yes. So what I was saying कि machine learning, जब आप machine को अपने train करोगे, to give our machine the ability to distinguish whether the cell is a benign or malignant, we have to follow these steps. Okay, and ये steps क्या क्या है? पहला आता है data pre-processing. Data pre-processing में क्या होता है कि हमारे पास जब data आता है इस तरीके का, तो ये तो आपका data बहुत ही clean data है, ठीक है? This doesn't require pre-processing. But in future, if you are working with the data, आपके data में बहुत सारे anomalies होंगे, कहीं कहीं पे data missing होगी, या कहीं पे कुछ चीजें मेंशन ही नहीं होंगे, या कुछ अजीब सी वैल्यूज होंगी, ठीक है? सो यू हैव टू डील विद दैट. सबसे पहला काम आप करोगे, अपने डेटा को प्री प्रोसेस करोगे, ठीक है? तो एक चीज वो आती है. दूसरा आपका स्टेप होता है कि यू हैव टू स्प्लिट योर डेटा इनटू ट्रेन एंड टेस्ट. किसी ने कभी ये चीज सुनी है कि ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट में अगर आप डेटा को स्प्लिट करते हो तो व्हाट इज इट? Anyone, if you're having any rough idea about train test split? No? ठीक है. अब इसमें भी I'll be giving you an example. ठीक है? Let's say Abhishek Chatterjee is here in the meeting. Abhishek Chatterjee goes to the college every day. ठीक है? So what I'll do, इसके असाइनमेंट्स होते हैं या इनमें बहुत सारे मैंने क्या किया कि लेट्स से आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, राइट, इन विच यू हैव टू प्रोवाइड योर आंसर्स, ठीक है? इसी चीज में जब क्लासेस चल रही होती हैं तो आपको सेम ये सारे क्वेश्चंस बताए जाते हैं with answers, right? Let's say अभिषेक चैटर्जी को कॉलेज में जब वो एंटर करता है और जब पढ़ाई करता है, जब अपने सेशंस अटेंड करता है, सो इन बायोटेक्नोलॉजी सेशन he gets to know what is biotechnology. I am providing him the question, what is biotechnology, and उसी के नीचे I am providing Abhishek the answer that biotechnology is the field of this and dash dash dash. I'm providing him the complete definition. So अभी मैंने क्या किया, अभिषेक को I provided the question as well as the answer, right? Next, when he comes to his semester exam, I'm providing him the question, what is biotechnology? This time I won't provide Abhishek the answer. Abhishek has to do that. Cool, Abhishek? Abhishek, are you with me? Are you guys able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So यही चीज हम करेंगे अपने मशीन के साथ, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने अभिषेक को पढ़ाया व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, तो मैं जाकर देखूंगी ना क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पेपर दूंगी तो मैं उसका टेस्ट लूंगी कि भाई अभिषेक तुम्हें कितना आया, तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी समझ आई भी कि नहीं आई. तब जाकर मैं अभिषेक को उस बेसिस पे मार्क्स दूंगी कि अभिषेक कितना एनालाइज कर सकता है एंड कितना प्रिसाइज हो सकता है अपने आंसर्स में. सिमिलरली अगर ऐसा ही एक मशीन लर्निंग मॉडल कैंसर सेल डिटेक्शन का किसी हॉस्पिटल वाले ने यूज कर लिया, तो हम उस हॉस्पिटल वाले को बताएंगे ना कि हमारे जो मशीन लर्निंग है वो 96% एक्यूरेट है, यू कैन ट्रस्ट दिस मॉडल. नहीं तो कोई भी बेचारे पेशेंट को अगर बिनाइन सेल निकलेगा तो उसको वो कह देगा मशीन हमारा कि नहीं ये बिनाइन नहीं है, मैलिग्नेंट है. तो ये चीज में रिपोर्ट जो उस पेशेंट की होगी वो गलत आ जाएगी, राइट? तो आपको उसको अपने मशीन की भी एक्यूरेसी निकालनी पड़ेगी. तो इसलिए व्हाट वी डू, हम अपने डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करते हैं. हम अपने डेटा को देते हैं कैसे कि हम अपने डेटा को पूरे लेबल्स प्रोवाइड करते हैं, पूरे मतलब क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, साथ में उसको आंसर्स प्रोवाइड करते हैं. समझ रहे हो? अब
टेस्ट भी हम लेते हैं अपने मशीन का. लेट्स से मेरे पास 700 डेटा है, तो हम इसमें से 80 डेटा को क्या करेंगे, लेट्स से मेरा डेटा यहीं तक है 10th नंबर तक, नीचे का भूल जाओ आप. तो 10th नंबर तक डेटा है, तो मैं क्या करूंगी 8th नंबर तक 80% अपने मशीन को कहूंगी कि आप इतने क्वेश्चंस याद कर लो, इसके आंसर्स ये हैं. ठीक है. नेक्स्ट 20% के लिए मैं टेस्ट में ले लूंगी, मैं उसको क्वेश्चंस दूंगी सिर्फ, और फिर कहूंगी कि अब आप बताओ कि इन दोनों की क्लासेस क्या हैं. इससे जब अगर हमारा मशीन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और 2 बताएगा, तो हमारा मशीन मॉडल बिल्कुल परफेक्ट है, ये बहुत सही प्रिडिक्शन कर रहा है. इन केस वो 4 बता रहा है, तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल बहुत ही बेकार है. ठीक है. इस 2 को अगर वो 4 प्रिडिक्ट कर रहा है, तो इन केस वो 2-4 प्रिडिक्ट कर रहा है, तो कि 50% हमारा मॉडल एक्यूरेट है. समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट वी विल डू. हम अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करते हैं अपने मॉडल की एक्यूरेसी निकालने के लिए. ठीक है. सो दिस इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. नेक्स्ट वी सेट एल्गोरिदम. एल्गोरिदम हम लगाएंगे कि वेदर हमारा ये क्या हो सकता है, वेदर इट्स क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, जो भी हम मॉडल को फिट करते हैं. अगर हम देख लेते हैं कि हमारा अगर क्लस्टरिंग का मॉडल है, तो वी इंपोर्ट आवर क्लस्टरिंग मॉडल, वी प्रिडिक्ट वैल्यूज, देन वी इवैल्यूएट कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, कितना नहीं है, एंड देन वी यूज द मॉडल. इट इज इतना प्रोसेस है हमारा मेन, जो हम पूरे कैंसर सेल डिटेक्शन प्रोजेक्ट में भी करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम्स सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. ओके. इसमें क्या होता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, सुपरवाइज्ड इज समथिंग इन विच वी प्रोवाइड लेबल, एंड इन अनसुपरवाइज्ड वी डोंट प्रोवाइड द लेबल. ठीक है. जैसे आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स, मैंगो एंड एप्पल्स. तो अगर उस मैंगो और उस एप्पल के नीचे लिखा ये मैंगो है, ये एप्पल है, ठीक है, मैं अगर बता के आपको सिखा रही हूँ कि दिस इज मैंगो, दिस इज एप्पल, ठीक है, सो दिस इज सुपरवाइज्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग. बट अगर मैं आपको लेबल्स नहीं दे रही, मैं आपको सिर्फ पूरी बास्केट मैंने दे दी है, और आपको खुद से वो देखना होगा पैटर्न समझ करके कि ऑरेंज है तो वो, अगर येलो कलर है तो मैंगो है, अगर रेड कलर है तो एप्पल है. अगर मैं आपको लेबल नहीं दे रही हूँ, दैट इज अनसुपरवाइज्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग. ओके. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Cool. Very good. You guys are very intelligent. Now, moving on to the next slide. This is how we teach the model with label data. Classification जब हम करते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को मैंने भी कहा था ना, बता रहे थे, क्लासिफाई करवा रहे थे कि ये कैट है, ये डॉग है, तो मैं जब उसको कैट दिखा रही हूँ, then I'm also telling this is cat. मैं जब डॉग दिखा रही हूँ, I'm also providing the label कि this is dog, right? So this is classification is a form of supervised learning model, जहाँ पे हम labels provide करते हैं. Similarly, जो हमारे पास कैंसर सेल का डेटा भी है, I'm providing the class benign, malignant, ठीक है, तो यहाँ पे हम लेबल्स प्रोवाइड कर रहे हैं. दिस इज क्लासिफिकेशन. एंड ऐसे ही हम 2 क्लासेस में, कैटेगरीज में जब हमारा मशीन इस केपेबल हो जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट. ये अभी आप सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देख रहे हो. इन नेक्स्ट सेशन यू विल बी डूइंग दैट, and then you will be knowing better. One thing I'd like to add कि हमारी जो organization है, we have created, हमारे जो students basically हैं, they have created a project that to a gun. उसमें उन्होंने एक autonomous gun बनाया था उस project में, जो कि आपके डिफेंस सेक्टर में काम आ सके.
ठीक है, सोल्जर्स को पता चल, वहां पे एक ऑटोनॉमस गन है जो कि ऑटोमेटिकली आप शूट कर देगा वहां पे इन दी बॉर्डर एरियाज जहां पे सोल्जर्स का जाना इतना काफी रिस्क साबित हो सकता है, राइट। तो वहां पे हमने उस ऑटोनॉमस गन के प्रोजेक्ट से लेकर के आए थे। तो अब वो गन है वो किसको शूट करेगा, या तो वहां पे एक ह्यूमन को रिकॉग्नाइज कर रहा है या कोई गाड़ी आ रही है तो वो कहीं भी शूट नहीं कर देगा। उस पे भी हमने क्लासिफिकेशन मॉडल लगा रखा है कि वो उस पे भी लगे हैं दैट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ ह्यूमन और समवन हु इज स्पाई, ठीक है, इस तरीके से डिस्टिंग्विश करके वहां पे शूट करेगा। तो इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको मशीन लर्निंग में आगे जाना चाहो, अगर आप इसको सीखो, सो यू विल बी लर्निंग अ लॉट एंड you won't Ma'am, believe. can I ask Yes. a question? You just said that there is also Yes, sure. training phase for machineries and like the programming. All right. So as you have Mhm. mentioned about the particular programming that your students have created to shoot out the enemies, right, in the border areas. So even though someone is suspecting, that's also human. So have you trained that particular machine to like shoot out? Yes, we have trained the machine. We have given different parameters. Like if a human is coming in some this color clothes, then this is from our country. So our machine won't shoot that. But someone who is like, if an anomaly is detected, we have the students have code in such a way. You can just ask from us. They were like in mentorship of Saurav Patel. He was the main who was doing this project. So you just, and he was also praised for by the Prime Minister and Defense Minister of the country for this work. So you can just ask like what he did in as a team to this to give this much light to this project. Okay. So, ma'am, this particular project is now in implementation. Like, they have already implemented this Yes, project. this has gone for like a pass for the approval from the DRDO. Okay. Now, Yes. I'm just like curious about this. Like what if some like we know that those are in technologies. There are very high chances for mistakes to happen. Like it's very common nowadays, like to face errors. So, were there any errors? Yes. Yes. So, what kind of errors could it show? Like, because it's again like a thing about the country and also the people dying. So that's what I was asking. Like, can it make any errors? Like, maybe it's possible, like the parameters they've said that might shoot a innocent person too. See, yes, this might happen. This might happen. But जो भी project यहाँ पे हुआ है, जो भी project जो बना रहे हैं, they too have like set different parameters. They have gone through the questions which has just come to your mind, and they have implemented that in different ways. अगर वो project हमारे country के defense minister and prime minister तक जा रही है, तो कुछ तो innovative होगा. ये सारे outcomes उन्होंने कहीं That's से तो right. absolutely true. So But I'm just you curious, can, like, what did they use? Because I've never really yes. heard about any of these things. Like, we've just seen this kind of things in science fiction. But for the very first time, I have like heard something. So I'm very curious about this. Like, what things have they done? Well, thank you for like enlightening it. Thank you very much. Sangramjit, I'm just like I really want कि आपकी जो curiosity है, but ये lecture काफी लंबा चला जाएगा, and since I'm bound to the time and सिर्फ 5 दिन मिले हैं ये पूरे session करवाने में, ये curiosity सौरभ सर के साथ आप session लेकर के इसको पूरी अच्छे से सही कर लेना, उनको बैठा करके, ठीक है? Thank you very much. ओके, सो फटाफट हम एक चीज देख लेते हैं कि हम अपने डेटा को कैसे ये जो हमारे पास डेटा है CSV फॉर्मेट में, इसको कैसे हम अपने प्रोग्राम में लेकर के आएंगे. एंड देन वी आल्सो हैव अ सीनियर HR प्रेजेंट विद अस who will be guiding you for some time. So इसको हम फटाफट खत्म करके then we'll move further. ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये हमारा डेटा है.
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेटा में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और इस डेटा में हम क्लास को प्रिडिक्ट कर रहे हैं वेदर द सेल इज बिनाइन और मैलिग्नेंट। ठीक है, अभी ये जो शीट है हमारी, दिस इज CSV, ये खुली है एक्सेल में, बट जो शीट है दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV के फॉर्मेट में है। CSV कैसे है, आई लेट यू नो। आप ये शीट को मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको विथ नोटपैड। ठीक है, ये देखो, ये एक्चुअल शीट ऐसी है। ठीक है, दीज वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा, इसलिए ये जो शीट होती है इसको हम CSV फाइल कहते हैं। ठीक है, एक्सेल की जो शीट होगी आपको नॉर्मल मिलेंगी। जब इस तरीके का डेटा हमारे पास आता है तो दिस इज CSV शीट, यहाँ पे वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा, डिफरेंट कॉलम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, तो पैंडास लाइब्रेरी की मैं आपको बात बता रही थी कि हम पैंडास से अपना जो भी डेटा है उसको हम अपने प्रोग्राम में कैसे लेकर के आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको कोड एक बार करके बताऊंगी जिससे आप अपने डेटा को अपने कोड, अपने प्रोग्राम में लेकर के आओगे। कोड मैं करूंगी गूगल कोलैब में। ठीक है, गूगल कोलैब गूगल की एक रिपोजिटरी है जहां पे आप कोडिंग कर सकते हो पाइथन से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड, एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू कैन जस्ट क्रिएट अ न्यू नोटबुक, you don't have to set up anything, you don't have to import anything, या आपको कोई चीज इंस्टॉलेशन नहीं करनी है, you can normally come online एंड यहाँ पे आप एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप जुपिटर यूज करके जुपिटर नोटबुक यूज करते क्रिएट करते हो, यू क्रिएट अ कोलैब नोटबुक ओवर हियर। ओके, सो कमिंग टू योर कोड, यहाँ पे आई जस्ट इंपोर्ट लाइब्रेरी जो भी है मेरी पैंडास वाली एज PD। एज PD का मतलब ये है, ये पैंडास लाइब्रेरी ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए मैं इसको सीधे इंपोर्ट कर ले रही हूँ। ठीक है, इस लाइब्रेरी के अंदर जो भी फंक्शंस हैं इसको इंपोर्ट करने के बाद आई विल बी वेरी इजीली बी यूजिंग दोज फंक्शंस। एंड एज PD का मेरा ये मतलब है कि जहां जहां मुझे इतना बड़ा वर्ड पैंडास लिखना पड़ेगा मैं सिर्फ PD लिखूंगी। ठीक है, इसको मैं रन करने पे छोड़ देती हूँ। तक व्हाट आई विल डू, जो ये CSV शीट है उसको मैं अपने कोलैब नोटबुक में अपलोड कर दूंगी। आप लोग भी कोलैब में कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल्स का। ओके, हियर अपलोड टू सेशन स्टोरेज, my file is over here, this one। ठीक है, सो माई फाइल इज अपलोडेड एंड ये जो ऊपर वाला कोड है ये रन भी हो चुका है। नाउ मैं दूसरा कोड करके इसको रीड करवाऊंगी अपने फाइल को। तो pandas come with a special function read CSV, read Excel, write CSV, write Excel, ये सारे फंक्शंस आते हैं pandas के अंदर जिससे आप एक्सेल शीट को, CSV शीट को रीड कर सकते हो या उसमें राइट कर सकते हो। ठीक है, तो कल आई गेस यू ऑल नो व्हाट अ वेरिएबल इज इन पाइथन। सबको पता है कल के सेशन के बाद? Hello, do you know what a variable is? Yes, ma'am. Okay, so variable is something in which we can store the value. तो यहाँ पे मैं एक डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लेती हूँ जहाँ पे you will be storing ये पूरी शीट। ठीक है, और ये शीट को आप रीड करोगे इसी डेटा वाले वेरिएबल के अंदर में। तो pandas के अंदर आता है एक फंक्शन pandas डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। इस फंक्शन के अंदर आप जो भी अपने CSV शीट की वैल्यू डालोगे, जो जैसे मेरे CSV शीट का नाम है ये cell underscore sample dot CSV, so I'll write cell underscore sample dot CSV। ये जो शीट है इसको मैं क्या करूंगी, रीड करवा लिया मैंने pandas से। अब
लेट्स सी डेटा डॉट हेड करके, व्हाट डज हेड डू, जो भी आपका ये वेरिएबल जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर हुई है उसके स्टार्टिंग के आपके 10 नंबर्स 10 रोज शो करेगा हेड, ठीक है। अगर आप df डॉट टेल करते, डेटा डॉट टेल करते तो लास्ट के आपके 10 डेटा आपको शो होता। अभी अगर मैं इसको रन करूंगी, सी ये जो भी आपका डेटा इस CSV शीट के अंदर था, इट हैज नाउ कम इनटू योर प्रोग्राम। प्रोग्राम में आने के बाद आप इस डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हो। अब आप इसको अपने मशीन लर्निंग मॉडल बनाओ, आप उस मॉडल को इस डेटा से ट्रेन करवाओ, टेस्ट करवाओ, ठीक है, इसको एक क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर पुट करो एंड यू आर जस्ट डन विथ इट, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हिच यू डिड इन मशीन लर्निंग। So, did you find it interesting? Yes, ma'am. Okay. So, बाकी जो चीजें हैं, we will be covering जो भी आपका SVM का क्लासिफिकेशन के आगे जो मॉडल्स हैं, we will be doing it tomorrow. And the timings, I guess, it's 4:30. तो कल का जो सेशन होगा, we will be completing our classification prediction model, ठीक है। You will be, जो भी आप कैंसर सेल डिटेक्शन का जो मॉडल है, you all will be able to do that by tomorrow. So today we have with us our senior HR, Ms. Kuljeet Kaur, who is present. So Kuljeet, I would just like you to guide our students for a few moments, and then we will be playing our video after your guidance. Sure. Sure. Thanks, Dominic, for your time. Hello, guys. How are you doing today? Hello. We are doing well. Am I audible? Good, ma'am. Yes. Yes, ma'am. We are Wow, doing. it was so good for me to see an interactive session. I hope this session was much more interesting and you got to learn new things. So I'll give you a brief about the VIT platform, VIT careers, and your future aspirations. So VIT is not only a platform of learning and knowledge, but overall development of a personnel. VIT focuses on the growth factors of a resource and helps them inculcate the skills to work in a corporate environment. VIT has multiple IT programs, machine learning, and lots to learn in core languages like C, C++, Python, and many more. People who wish to enroll to our program has to pay rupees 1100, out of which 300 will be the registration fee, which needs to be paid immediately, and 800 will be charged as the course fee, which can be paid later. Apart from this, if a candidate wants to enroll for another course, he or she only has to pay the registration amount of rupees 300 and no course fee. Apart from this, VIT provides free 3 years benefits to the candidates associated with them, like overall personality development with communication skills training, personal development, and building up self-confidence. VIT certificates will be valid across the world. For VIT careers, preference will be given to the candidates who are associated with us. And last is your VIT students are placed in different top MNCs which have tie-ups with VITs. So no tension of placements and no tension of overall development. So we will nurture your skills. And it's not a mandate to register or enroll into our program. It's completely a candidate's choice or will to pursue with VIT and help develop a skill that differentiate him or her from the crowd. So this is the prime focus of VIT. Since you people are joining in from Kolkata, I would also like to go ahead and just complete benefits of VIT in Bengali as well, so that everybody is on the same page. So guys, do you have any questions or should I go ahead? Anyone? Come on guys, it's an interactive session. You may go ahead, ma'am. Yeah, sure.
সো ভিআইটি শুধু লার্নিং বা নলেজ এনভায়রনমেন্ট নয়, কিন্তু অনেক ফিচারে ফোকাস করে, যে আপনাকে কর্পোরেট এনভায়রনমেন্ট ওয়ার্ক করতে সুবিধা হবে। ভিআইটির পাশে অনেক প্রোগ্রাম আছে, লাইক মেশিন লার্নিং, 4 ল্যাঙ্গুয়েজেস লাইক সি, সি প্লাস প্লাস, পাইথন এন্ড অন্য অনেক ট্রেনিং প্রোগ্রামস। যাদের এনরোল করার ইচ্ছে তারা 1100 টাকা দিয়ে এনরোল করবে। 300 টাকা রেজিস্ট্রেশনের জন্য, যেটা এক্ষুনি লাগবে, আর 800 টাকা পরেও দিতে পারে। যারা এই কোর্স কমপ্লিট করে অন্য কোর্সে এনরোল করতে চাও, তারা only 300 এ এনরোল করতে পারবে, আর টাকা লাগবে না, কোর্স ফি লাগবে না। সো ক্যান্ডিডেটস যারা ভিআইটির সাথে থাকবে তাদের 3 বছর ফ্রি বেনিফিটস দেবে, যেরকম বেনিফিটস আছে। First is your overall personality development with communication skill training, personal development, and building up self-confidence. So VIT certificates will be valid across the world. For VIT careers, preference will be given to the candidates who are associated with us. And last is VIT students will be placed in different top MNCs which have tie-ups with VIT. So সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কথা, এই এনরোলমেন্টটা ম্যান্ডেট নয়, আপনার ইচ্ছা ডিপেন্ড করে। ভিআইটি পুরোপুরি ফোকাস করবে কি আপনার সিলেকশন বা আপনাকে কর্পোরেট সেক্টর জন্য তৈরি করিয়ে দিই, জব মিলতে সুবিধা হবে। So everybody is growing their careers, everybody is growing their skills, nurturing their skills in order to get a good placement, right? Everybody needs a good salary, a good placement, a good opportunity. So we are preparing our candidates. It's not only just a learning or a knowledge that we are providing to our students. We are giving 3 years of free benefits, so which is again an added advantage to the people. So guys, I'll just repeat everything that I have said to you in Hindi as well. तो VIT आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपको लर्निंग या नॉलेज पे फोकस नहीं करता, वी फोकस ऑन योर ओवरऑल डेवलपमेंट टू, because corporate environment is an environment which looks after your overall development and then only they hire you, right? VIT के पास मल्टीपल IT प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, और बहुत सारे कोर लैंग्वेजेस के भी प्रोग्राम्स, कोर लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। जिनको भी एनरोल करना है हमारे प्रोग्राम में, उनको 1100 देकर एनरोल करना पड़ेगा, आउट ऑफ विच ये 1100 का जो ब्रेकअप है वो 300 प्लस 800 का ब्रेकअप है। 300 आपका एक रजिस्ट्रेशन फी होगा जो आपको इमीडिएटली देना पड़ेगा, एंड 800 आप बाद में भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी दूसरे कोर्स में भी एनरोल करना है ये कोर्स खत्म करने के बाद, तो आप उस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। उस केस में आपको कोर्स फी नहीं लगेगा, आपको सिर्फ 300 देना है। इसके अलावा VIT आपको 3 ईयर के फ्री बेनिफिट्स देता है जो कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं। एक तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पर्सनल डेवलपमेंट और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कराता है। उसके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको वो ट्रेनिंग दिलाएगा कि कैसे कैसे हम आगे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जा सकते हैं। VIT के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो वैलिड होंगे। VIT में जो भी वैकेंसीज निकलेंगी उसमें उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा जो उनके साथ एसोसिएट हैं जैसे। और VIT के टाई-अप्स भी हैं दूसरे कंपनीज के साथ, तो उन कंपनीज के लिए जब भी कोई ओपनिंग आएगी तो VIT अपने स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देगा उन केसेस में। ये आपके लिए मैंडेट नहीं है कि आप इसमें रजिस्टर करें या एनरोल करें इस प्रोग्राम में। अगर आप करना चाहें तो ये आपकी विल है, ठीक है। ये आपको ये फायदा होगा कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे और आगे आने वाले दिनों में यू विल स्टैंड आउटसाइड फ्रॉम द क्राउड। आपके पास ऐसी क्वालिटीज होंगी जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा। So guys, this is the exact picture of VIT. I hope you would find it interesting. And do you have any questions?
So Ramnik, I think team does not have any questions. So over to you if you just want to wrap up Okay. your call and Thank you everything. so much. So guys, have Thank a you so good day. much, Kuljit, for thank you so much, Kuljit, for your time from your busy schedule. Thank you so much for your presence. So, Thanks, Ramnik. Ibtisam, Thanks everybody. Have a Ibtisam, great can you? day. Thank you. Ibtisam, can you please open the chat option for me? I would like to give the student community link over here so that the students can join our. Yes, ma'am. As you are an external, so it will not be able for you to see the chat box because there are some settings in our team. Okay. One thing, I can read the questions for you. Okay, so everyone can see the chats. No, what you can. Ibtisam, I just wanted to add the WhatsApp group link of our student community. Ma'am, we have So you already can share joined it that over group. your group. Ma'am, we have already shared. Ma'am, we have already joined the group. Yeah. We have already Okay, shared. okay, cool. So I'll just. Okay, thank you so much. Thank you so much, Ibtisam. And you can just go through our VIT video, a short presentation. You can go through it. I'll just share my screen with you guys. Yeah, sure, ma'am. Just let me know if you can listen to the audio. Are you getting the audio? No, ma'am. No, ma'am. No. Okay, no worries. I'll share this video link to you guys over mail, or just try once if you're getting it now. Ma'am, I guess you'll need to share your screen along with the, including the computer audio. Then we'll be able to hear it. Was the are you getting the video audio with the video? Hello, can someone confirm me if you're getting the audio? No, ma'am. We won't get it. No, ma'am. No, ma'am. Okay, no worries, no worries. I'll share the link in the WhatsApp group. Okay, and thank you so much for your session. And tomorrow we'll reconnect to complete our cancer cell detection project. Okay, thank you so much for your patience and presence. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, everyone. We'll see you tomorrow in the next session, sharp at 4:30 p.m. Thank you. Thank you. Bye-bye.